ओके, जस्ट सेकंड में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। सो दिस इज़ अबाउट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड केपी वैल्यू एंड केसी वैल्यू, हाउ डू दे इफेक्ट। अच्छा, एक बात याद रखें, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि केसी को, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज़ ओनली अफेक्टेड और गेट चेंज बाय द चेंज इन टेम्परेचर। प्रेशर वगैरह का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। So it is like this. I think someone has raised the hand. No, no, there's no one. Okay, so here it is. Position of equilibrium refers to the relative amounts of the products and reactants in an equilibrium mixture. ठीक है, शहीर, ये देख लें कि position of equilibrium क्या होता है. It is the relative amounts of products and reactants present in an equilibrium mixture. So if the position of equilibrium favors the reactants, then equilibrium mixture will contain mostly reactants. And if the external conditions are altered, like temperature and pressure, then position of equilibrium will shift and a new equilibrium will form. Only if we are talking about gases, तो फिर pressure भी affect करेगा, otherwise just temperature. Factors affecting position of equilibrium according to Lee-Chatwell's principle. So what is the Lee-Chatwell's principle? अब different conditions पर ये अपनी different comments देता है. He says that what is its definition? कि when a change is applied to a system in a dynamic equilibrium, the system reacts in such a way as to oppose the effect of change. For example, अगर आपने temperature exothermic reactions हैं, उनका आपने temperature increase कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम वापस रिएक्टेंट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि और वहाँ से फिर ये रिएक्ट करना शुरू करेगा इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है ना, वो तो पहले ही अपने आप को कूल डाउन कर रहा है, आपने ऊपर से उसको और हीट अप कर दिया, तो अब वो वापस चला जाएगा, क्योंकि अपने वापस ओरिजिनल वाले टेम्परेचर पे जाने की कोशिश करेगा. सो वी से दैट whenever a change is applied to the system, a dynamic then system reach in such a way to oppose the effect of that change. Or we can say Lee-Chatwell principle states if an external condition is changed, equilibrium will shift to minimize that change. There are three factors which affect the position of equilibrium. Number one is concentration. Number one is pressure. Number two is pressure. Third is temperature, and temperature is most important. Effects of concentration and pressure is predicted by reference to the stoichiometric equation for a reaction. ठीक है, concentration और pressure को हम इस तरह से देखते हैं कि जो प्रोडक्ट साइड पे मोल्स ज़्यादा हैं या रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कमेंट करते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो लाजमी है कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पर जाएगा या फिर रिएक्टेंट साइड पे जाएगा. वो हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं by looking at the number of moles on the reactant side and number of moles of certain thing on product side. Effect of temperature is predicted by enthalpy change of the reaction. उसको हम कह सकते हैं without looking at the number of moles. अगर हमें पता हो कि reaction is endothermic, तो increase in temperature will always take the reaction towards product side, and if reaction is exothermic, तो increase in temperature will always shift it towards reactant side. वही चीज़ हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. First one is effect of changing concentration. When concentration of one or more of the reactants is increased, अब देखा हमने reactants को increase किया है, हम कहेंगे system will no longer be in equilibrium. ठीक है ना, system will no longer be in equilibrium. Position of equilibrium moves to the right का मतलब है towards the product side, towards the product side, in order to reduce effect of increase in concentration of the reactants. ठीक है ना, आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसमें रिएक्टेंट्स और ऐड कर दिए. जब आपने रिएक्टेंट्स को और ज़्यादा ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. तो उस इक्विलिब्रियम को दोबारा गेन करने के लिए रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड साइड. More products are formed until equilibrium is restored. When concentration of one or more product is increased, फिर क्या होता है,
हम कहेंगे सिस्टम इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट का मतलब है टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड to reduce the effect of the concentration of the products. More reactants are formed until equilibrium is achieved. For example, look at this reaction. We have ethanoic acid and ethanol, and it is producing ethyl ethanoate and water. It is an esterification. He says, what happens when we add more ethanol? बेटा देखो क्या होगा. Ethanol is on the reactant side, right? So concentration of ethanol on the reactant side will increase, so they will react together and equilibrium will shift towards product side. सॉरी अपना पासवर्ड बताओ ट्रिपल एच For what? मैं बाद में बताऊंगी इसका नहीं, I changed it. पिछला वाला I changed it. जो तुमने मेरे में डाला था वो डाला नहीं था ना इसलिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था. मुझे तुम्हें पता है वो मैंने सेव कर दिया वो मेरा बन गया ओह नहीं, मैंने. इतना इट्स ओके बहुत मुश्किल था Okay, the concentration of ethanol is increased according to Lee-Chatliers principle. Some of the ethanol must be removed to reduce the concentration of added ethanol. So therefore, reaction will move towards the product side. So we say that more ethanol reacts with ethanoic acid, more ethyl ethanoate and water will form. Now, what happens when we add more water? एक इक्विलिब्रियम में मिक्सचर है, उसमें आपने वाटर ऐड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ आपने ऐड कर दी है. तो इसका इफेक्ट को कम करने के लिए वाटर विल रिएक्ट विद इथाइल एथेनोइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर रिएक्शन जो है ना इस तरफ को चला जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम एक्चुअली will shift towards reactant side and more ethanol and more ethanoic acid will form until equilibrium is restored. ठीक है ना, ये सारी चीज़ है. So more water reacts with ethyl ethanoate and more ethanoic acid and ethanol are formed. What happens when we remove some water? अगर हम water को remove कर लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो इसकी concentration increases, decreases, तो equilibrium shifts towards that side which has less concentration. So these will react together and equilibrium will shift towards product side और आपके पास और भी ज़्यादा water और ज़्यादा ethyl ethanol form करेंगे और आपके पास equilibrium आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से I will share it, you will be able to read through it as well. Now let us study the effect of pressure on position of equilibrium. अच्छा, pressure has effect on gases only because gases can be compressed by applying pressure. अगर आप pressure apply करोगे, liquid तो compressible नहीं होते, वो compress ही नहीं होंगे. अगर आप pressure ज़्यादा apply करोगे solids पे, तो solids भी compressible नहीं होते. ऐसा क्यों क्यों होता है? क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप होता है काफ़ी ज़्यादा, तो वो गैप कम होना शुरू हो जाता है. तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उनके बीच में तो गैप ऑलरेडी नहीं होता है, ठीक है ना. वेरी लिटिल गैप इन लिक्विड्स, वो भी ओवरकम नहीं होता, वो भी कम नहीं होता, नो मैटर हाउ मच प्रेशर यू विल अप्लाई ऑन इट. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो हम कहेंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर equilibrium will shift towards that side which has more number of, sorry, less number of moles of gases. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रिएक्शन है. यू हैव टोटल, इफ यू विल सी हियर, तो रिएक्टेंट साइड पे वी हैव 3 moles ऑफ गैसेस, 2 इसके 1 इसके, और प्रोडक्ट साइड पे वी हैव जस्ट 2 moles. So when you will increase the pressure, equilibrium will shift towards less number of moles, yani towards product side. So what happens when we increase the pressure? We say that molecules get closer to each other, pressure becomes higher. According to Lee-Chatterjee principle, a reaction must shift in the reaction direction that reduces the number of moles of gases, so that pressure may go into the original value. So position of equilibrium will shift towards right. So more SO2 reacts with O2 to form more SO3. You understand, guys? इसके बाद हमारे पास है
सो डिक्रीज इन प्रेशर में क्या होता है, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, decrease in pressure will shift the equilibrium towards that side which has less number of moles of gases. Oh, sorry, more number of moles of gases. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि decrease in pressure, decrease in pressure will shift equilibrium towards that side which has more number of moles of gases to reduce change, to reduce effect of change in pressure. So सही चीज इधर लिखी होगी, ठीक है ना? तो बस इस तरह से, for example here, look at here now, we have this is the gas, this is the gas, and this is gas as well. Here we have total number of moles of gases 2, और यहाँ पर भी हमारे पास 2 number of moles of gases हैं. So whether you increase or decrease the pressure equilibrium will not be affected, ठीक है ना? So दिस इज जस्ट केसी. अच्छा, केसी का तो आपको पता है कि इसका केपी जो होगा वो भी चेंज नहीं होगा और केसी भी चेंज नहीं होगा. केसी डज ओनली चेंजेस विद द टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्वाइट इजियर, जस्ट स्टे हियर विद मी इन द क्लास. बेटा ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, वेदर इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन or it is endothermic reaction. So you know that Haber process. Haber process is an exothermic reaction, right? Because it has negative enthalpy change. So when you will increase the temperature of this reaction that you see on your screen, that is exothermic reaction, the equilibrium will shift towards the reactant side because you're going against the nature of reaction. रिएक्शन की नेचर ये थी कि वो गैस, वो जो है ना, रिएक्शन करने के बाद हीट रिलीज कर रहा है, अपने आप को कूल डाउन कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उल्टा कर दिया, आपने उसको और ज़्यादा हीट प्रोवाइड की, ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम फिर वापस चला जाएगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड. सो देयरफॉर यील्ड ऑफ अमोनिया विल गेट डिक्रीज. लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर दोगे तो अमोनिया की यील्ड इंक्रीज कर सकती है. तो इसको हम ये कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर फेवर endothermic reactions. और यहाँ पर हम लिखेंगे हाई टेम्परेचर फेवर, हाई टेम्परेचर फेवर्स, ओ ओ मैंने सारा उल्टा लिख लिया. हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और ये वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब अगर आप देखें यहाँ पर तो दिस जस्ट लाइक बिट चेंज, तो इसको आप देख लीजिएगा. हम कोई और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे SO2 है हमारे पास प्लस O2, तो it will be forming SO3. It's like this one, and this it has delta H negative, right? So who is going to tell me कि what will happen to the position of equilibrium? Will it move towards the product side or will it move towards the reactant side if I increase the temperature? तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो क्या होगा जी? Is there anyone who is going to tell me the answer? जी, exactly. So it will happen like this one.
Okay, so it is here as well. अब देखो कि आपका ये भी डिपेंड करता है ना कि लेट्स से मैं यहाँ पे जाऊँ, अगर यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, if reaction just like this one, if reaction is exothermic, ठीक है ना, at high temperature, at high temperature, more reactants form and there is low yield of the product, and there is low yield of product. अब आपको पता है कि प्रोडक्ट जब हम केसी लिखते हैं, हेंस केसी इज स्मॉलर. अब केसी स्मॉल क्यों होता है? बिकॉज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर केसी इसलिए स्मॉल हो जाएगा क्योंकि जब आपने इंक्रीज किया टेम्परेचर ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कम हो गई, और केसी होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स. तो जब न्यूमरेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो फ्रैक्शन कम ही होगी ना उसकी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का क्या मीनिंग है कि अगर लो टेम्परेचर होगा तो मोर प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, देयर विल बी हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड केसी विल बी लार्जर. तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ कि फॉर exothermic reactions, rex is a short form to write down reactions. For exothermic reactions, kc is inversely proportional to temperature. ठीक है, जबकि for endothermic reactions, for endothermic reactions sorry, we say for endothermic reactions, you know that um, kc will be directly proportional to temperature, because at high temperature equilibrium shifts towards प्रोडक्ट साइड. तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. आपने पढ़ लिए इफेक्ट वगैरह वगैरह, वो ये नहीं ज़्यादातर ओ लेवल्स में पूछते हैं ना कि प्रेशर की इंक्रीज करने से क्या होगा. यहाँ पर पूछेंगे केपी को क्या होगा, ठीक है ना. तो अगर तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पे जाएगा तो केपी इंक्रीजेज एंड केसी इंक्रीजेज एज वेल, राइट. और अगर आपका इक्विलिब्रियम इज मूविंग टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड तो केसी भी कम हो जाएगा, केपी भी कम हो जाएगा. लेकिन केपी को याद रखें कि इट इज स्पेशली फॉर गैसेस. अच्छा, ये हो गया हमारे पास. फिर उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. इट हैज नो इफेक्ट, हमने पहले भी पढ़ा इसको, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, इट जस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी and shift the equilibrium, sorry, and causes the equilibrium to be reached very quickly. जल्दी से equilibrium achieve हो जाता है, ठीक है ना. तो catalyst have no effect on value of Kc. अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा जैसे कभी आपको नजर आ रहा है. One common way of producing hydrogen on large scale is this reaction that you can see. Use the information to state and explain effect of equilibrium position on the following changes. Number one, इंक्रीजिंग द प्रेशर. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास हैं 2 moles ऑफ गैसेस और यहाँ पर हमारे पास हैं 4 moles ऑफ गैसेस. तो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड. इसलिए बस इतना से आंसर देना है आपने. आप देना अकॉर्डिंग टू ली शैटल प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू डिक्रीज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम विल, यहाँ से आंसर शुरू होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड to towards that side which has less number of moles, that is the reactant side, and hence yield decreases. बाकी आप देख लेंगे क्वेश्चन कितने नंबर का है तो उसको आप बता सकते हो. Decreasing the temperature of the equilibrium. Now look at here, जब टेम्परेचर का जिक्र आएगा तो फिर आपने
ये चीज़ देखनी होती है कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने कहा था कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर होगा तो लो यील्ड होएगी। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर मोर प्रोडक्ट्स, लो टेम्परेचर लेसर प्रोडक्ट्स फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे equilibrium position will shift towards left hand side, mean towards left hand side because forward reaction is endothermic। बस इतना सा आंसर लिखना है। Importance of equilibrium to the industrial processes. For example, number one, we have here the Hebrew process. I think we will do it in the next lesson. For now, that's it. Do you guys have any question now? If you have, you can ask me. हाँ हाँ। बेटा हमने ये थोड़ी कहा है कि हमने लाजमी हाइड्रोजन को ज़्यादा ही प्रोड्यूस करना है। हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन है, उसके ऊपर उसने पूछा कि इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट होगा। उसने ये नहीं पूछा कि हाइड्रोजन को लार्जर स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। उसने कहा लार्ज स्केल यानी इंडस्ट्री में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसके लिए ये रिएक्शन है। हमने ये वाली चेंजेस की हैं, अब बताओ क्या-क्या इफ़ेक्ट। अगर आपसे वो ये पूछेगा ना कि व्हाट चेंजेस यू कैन डू टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए आप कहेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ेज़ सॉरी इंक्रीज़ द टेम्परेचर एंड डिक्रीज़ द प्रेशर, ये कह देंगे। अच्छा, तो दूसरी साइड पे आई हैव द क्वेश्चन फ्रॉम सर आई थिंक हाशिर वाज़ आस्किंग द क्वेश्चन। बेटा प्रैक्टिकल के बारे में हमने बहुत काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल बात की हुई है। प्रैक्टिकल में आपने कुछ भी नहीं लेके जाना, आपने बस पहुँच जाना है टाइम से वहाँ पर। कैलकुलेटर ले जाइएगा और डोंट फॉरगेट टू टेक योर सेंसेस, ठीक है ना? अपने सेंसेस फुल सेंसेस के साथ जाना है। वहाँ पर जो भी होगा उसको नोट करके आपने घर पे आ जाना है, ठीक है ना? बस आराम से जाइएगा और आराम से वापस आ जाइएगा। कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो रहा, इट्स अ बिग इवेंट, ठीक है? लेकिन इतना बड़ा नहीं हो रहा कि वो क्या नाम है, परेशान हो जाएँ और ये इस तरह से करें। तो जस्ट स्टे नॉर्मल, टेक इट ईज़ी, एन्जॉय द डे, ठीक है ना? जब सैटरडे को आप जाओगे, कोई पेपर नहीं हो रहा, कोई कुछ भी नहीं हो रहा, इट विल बी योर फर्स्ट डे। उसमें देखें हर एक वीक में जब आप जाओगे तो देयर विल बी यू विल नॉट बी 100% फॉर द ऑन द फर्स्ट वीक, राइट? हर वीक में बस ये कोशिश करना है कि हर परेशान कब होना है? परेशान आपने तब होना है जब आपने प्रैक्टिकल के लिए जाना है फॉर द नेक्स्ट वीक। और आपने देखा यार पिछली दफ़ा मेरी परफॉर्मेंस 20% थी तो अब 18% हो गई है, फिर परेशान हो जाना है। अगर सेकंड वीक में जाके भी 20% ही है ना, तो भी ठीक है ना? फिर थर्ड वीक में जाके आप उसको 25 कर लेना, फिर थोड़ा-सा इसको हर वीक में एक्सेलरेट करके बाय फ़रवरी तक हम 100% कर लेंगे, फिर उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ठीक है? तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपने। ओके देन, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।